میں NRO نہیں دینا. یہ ملک چلانے والے نہیں ہیں, یہ کرکٹ ٹیم چلانے والے ہیں. میرے سے NRO نہ مانگے. چوروں کے اس ٹولے کا وقت اب ختم ہو گیا ہے. ایک ہارا ہوا شخص, شکست خوردہ شخص, ناکام شخص, عوام کا مجرم شخص PDM سے NRO کی بھیک مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ عمران خان آج خود چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا. ہمیں تو 3 مہینے تو صرف سمجھنے پہ لگ گئے. ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے, بھرپور تحریک چلائیں گے. فکر نہ کریں, ان کا وقت تھوڑا ہے, یہ چل نہیں سکتے, یہ اپنے زور سے خود گریں گے. کیا آپ لڑنے کے لیے تیار ہو, ان کی چیلیں بڑھنے کے لیے تیار ہو؟ اسلام آباد پہنچ کے اس کٹ پتلی کو اس وزیر اعظم کے کرسی سے گھسیٹنے کے لیے آپ تیار ہو؟ کیوں 20 فروری کو چلے گئے ہیں؟ بڑے شوق سے استعفے دیں, بڑے شوق سے لانگ مارچ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں انڈاؤٹڈلی یہ پہلی بار ہم سب لوگوں نے مناظر دیکھے, میڈیا نے, جیالوں نے, نون لیگی کے جو کارکنان ہیں انہوں نے, حکومت نے, کہ ہر پاکستانی نے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں پہلی بار یہ دیکھا کہ محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر نون لیگ کا ایک وفد جس کی سربراہی وائس پریزیڈنٹ آف PMLN یعنی مریم نواز صاحبہ کر رہی تھی, وہ گڑی خدا بخش. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ پہلی بار دیکھا گیا کہ بی بی شہید کی 13ویں برسی کے اوپر اس پارٹی کی طرف سے, اس پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ کی طرف سے نہ صرف خراج عقیدت, خراج تحسین پیش کیا گیا بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کو, بلکہ ان کے ساتھ نسبت بھی جوڑی گئی. نسبت جوڑنے والی کوئی عام خاتون نہیں تھی, وہ تھیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی صاحبزادی, وائس پریزیڈنٹ آف پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز صاحبہ. کس میں اپنی نسبت شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جوڑی, وہ سب آپ کے سامنے ہیں. کل سے پورا دن تقاریر, ان کے کچھ جو حصے ہیں تقاریر کے, وہ مختلف بلیٹنز میں, مختلف شوز میں دیکھتے چلے آئے ہیں. کیونکہ ویکنڈ کے بعد میری آپ سے پہلی ملاقات ہوگی کہ اگر میں PDM کے اس خاص گٹھ جوڑ کے بارے میں, اس خاص بیٹھک کے بارے میں, اس خاص جلسے کے بارے میں آج اپنے شو میں ذکر نہ کروں, کیونکہ یہ وہ جلسہ ہے جس کے اندر ہمیں تمام اپوزیشن اکٹھی نظر آئی. اچھا, اب خاص بات کیا ہے, اپوزیشن کا اپوزیشن میں رہتے ہوئے اکٹھے ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں بہت دفعہ عوام یہ دیکھ چکی ہے, کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب مشرف صاحب کی حکومت ہوا کرتی تھی تو کس طرح عمران خان صاحب انہی میاں محمد نواز شریف صاحب کے پیچھے پھرا کر, جن کو آج نہ جانے وہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے تو اپنی حکومت اپنی پارٹی کے میں وزن ڈالنے کے لیے چائے کالا کوٹ ہی پہن کر کیوں نہ جانا پڑے, لیکن اگلے کی پارٹی کے وزیر اعظم کو, اگلی کی پارٹی کو سابوٹاج کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. تو اصل میں پتہ تو تب چلے گا ان کی پیار کا, ان کی محبت کا, ان کے گٹھ جوڑ کا, جب حکومتیں آئیں گی. پارٹی کی حکومت آئی, جب PMLN آئی. آج کے وقت میں عمران خان صاحب کے حکومت میں ہم عمران خان صاحب کے پرانے سارٹس, پرانی تقاریر, پرانے رابطے, پرانے تعلقات کو منظر عام پر لاتے ہیں. اسی طرح کل ہونے والی تقاریر, کل ہونے والی جو تمام ملاقاتیں ہیں, بڑے خوبصورت لگ رہی ہے. اینی ویز شاید مجھے کریڈٹ نہیں لینا چاہیے, جو کہ وہ ٹیک اوے نہیں کرنا چاہیے کریڈٹ, جو کہ میں نے مناظر دیکھے, جس طرح بلاول صاحب گاڑی چلا رہے, مریم صاحب ان کے ساتھ بالکل آگے بیٹھی ہوئی تھیں, اور جس طرح وہ بی بی شہید کے مزار پر گئے, کی چادر چڑھائی, فاتح خوانی کی, جس طریقے سے میاں محمد نواز شریف صاحب کی صحت کے لیے, تب اخلاقی طور پر تو مناظر بہت اچھے لگ رہے تھے. لیکن آج کی ڈیبیٹ میں اس سوال سے کرنا چاہوں گی کہ یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ اصل ہے یا پھر یہ سیاست کا تقاضا ہے. پینلسٹ آپ کے سامنے رکھوں گی. عظمہ بخاری صاحبہ بڑی دلیر اور آج کے دن کے لیے بڑی ایپٹ. آئی وانٹ ٹو لسن ٹو عظمہ بخاری آن دس. السلام علیکم, خوش آمدید. انفارمیشن سیکریٹری ہیں پنجاب کی, PMLN کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. ویری آنریبل پینلسٹ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے. بڑی مہربانی آپ کی کہ آپ اس باوجود اس اسٹوڈیو میں تشریف لائے. راجہ یاسر ہمایوں صاحب ہیں, صوبائی وزیر ہیں. السلام علیکم. پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. A man who doesn't need an introduction, کافی سینسیشن بنے ہوئے ہیں. موسیٰ گیلانی صاحب ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. السلام علیکم, خوش آمدید. بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. اچھا موسیٰ صاحب تھوڑی دیر اور کمفرٹ زون میں بیٹھیں کیونکہ آپ کی تو ون ون سچویشن. I'll come back to you. Let me start the discussion with عظمہ, اور میں چاہوں گی کہ عظمہ ہی اس ڈسکشن کا ٹیمپریچر موڈ
सब कुछ सेट करे। अजमत, सारा कुछ आपके हाथ में है। आज मैं तो सिर्फ सवाल रखूंगी आपके सामने, एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट। भूल जाइए कि आज एक एंकर आपके सामने बैठी है, एक सियासत की तालिब इल्म, और आप जानती हैं कि मैं सियासी दाव पेच में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ। ये हुब्बे इक़्तिदार है या बुग़्ज़े इमरान है कि मरियम नवाज साहिबा गड़ी खुदा बख्श जाती हैं और बिलावल साहब के साथ तकरीबन 2-2.5 दिन वहां पर गुजारे, उनके घर में रहीं, जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, ये सब क्या है? इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिनेश, आपके इतने लंबे इंट्रो के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है बात करना। मुझे मेरी एको आ रही है, उसको प्लीज एडजस्ट करा दीजिए। हम जो है वो हुब्बे पाकिस्तान में इकट्ठे हुए और आज नहीं हुए थे। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब ने जब मिसाक जमहूरियत किया था तब इकट्ठे हुए थे। और आपको ये बात भी याद होनी चाहिए कि जब मोहतरमा का शहादत हुई उस वक्त भी वहां पर अस्पताल में पहले पहुंचने वाले सियासतदान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे और पीपीपी के लोग जो है वो उनके गले लग लग के रो रहे थे और वो उनको जो है वो एक वारिसों की तरह उनसे ताजियत ले रहे थे और वो कर रहे थे। और ये हमारी सोसाइटी की, देखो पॉलिटिक्स में जिस तरह बहुत और इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, उसी तरह थोड़ी सी इखलाकियात और थोड़ी सी रवादारी की गुंजाइश रहनी चाहिए। आपको बहुत सारे सियासतदान हैं सिवाय पीटीआई के, जो बल्कि मैं समझती हूँ ऑलमोस्ट पूरे मुल्क में ये रिवायत अभी भी बाकी है कि आप किसी की खुशी में शामिल हो ना हो, आप किसी के गम में जरूर शामिल हो और आप जाते भी हैं ताजियत के लिए, ताजियत आप जो है वो करते भी हैं। लेकिन ये पीटीआई में और ये पता नहीं, जैसे बहुत सारी और खूबियां हैं, ये भी एक खूबी है कि उनको किसी के गम से भी कोई लेना देना नहीं होता और वो उससे एक अलग थलग सिचुएशन में रहते हैं। तो हम पाकिस्तान के हुब में इकट्ठे हुए हैं और अब इमरान खान का इस मुल्क से रुखसत करना, इस सबसे ज्यादा पाकिस्तान की मोहब्बत है। और वो अब इमरान खान के इतराफ जुर्म के बाद कि उनको तो पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है, वो तो बिल्कुल लर्निंग लाइसेंस के ऊपर आए हुए हैं और वो लर्निंग लाइसेंस जो है उसके ऊपर खड्डे में फेंकी जा रहे हैं पाकिस्तान की गाड़ी। और सो मच हो कि जो गाड़ी का स्टीयरिंग है वो माफिया को बेच देते हैं, टायर जो है चीनी माफिया को बेच देते हैं। और अभी जो पेट्रोलियम की जो आई है नई रिपोर्ट, मतलब इतनी अजीब बात है। और अपने आप को सादिक और अमीन के लवाने से तो वो मतलब दरेर नहीं करते। इनके जितने बड़े बड़े स्कैम है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं आए, लेकिन कहलवा लो ये हम तो बड़े सादिक और अमीन है, तो कह लें ये सादिक और अमीन है। लेकिन हम तय कर चुके हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल, हम पहले कहते थे नालायक है, इसके पास नहीं है, लेकिन आपने अब खुद मुंह से एतराज सुन लिया। और अब सबसे ज्यादा जो सफाकाना हरकत है वो ये है कि जब एंकर पूछे कि लोग खुदकुशी कर रहे हैं, में यासर हमायूं साहब बड़े अच्छे एक सीजन पॉलिटिशियन है, ये भी अपने हल्के में जो लोग जो है बहुत हो जाते हैं उनके घर पर जाते हैं, जाकर ताजियत करते हैं, ये नहीं कह सकते मैं क्या करूं। और गुर्बत से जो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं उन पे आप कहें एक वजीर आजम जो रास्ते मदीना की बात करता है। इतना भी शेर व शकर क्या कि कौन पीपल्स पार्टी कौन पीएमएलएन, कल को इख्तलाफ भी करना है कि नहीं, इलेक्शन भी तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है कि नहीं, वजीर आजम तो एक ही बनेगा ना। इनकी पार्टी से बिलावल साहब और आपकी पार्टी से शायद अगर अनाउंस हो जाता है तो मे भी शायद मरियम बीबी हो आपकी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। तो इलेक्शन, सियासत, पॉलिटिक्स भी तो करनी है ना। हम कर रहे हैं, अभी भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ इश्यूज पे हमारी राय मुख्तलिफ होती है। और ये बात आप मरियम साहिबा के मुंह से सुन चुके हैं, बल्कि उन्होंने तकरीर में कहा कि बिलावल ने और मैंने, हमने एक दूसरे से वादा किया है कि हम इलेक्शन भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, हम कैंपेन भी करेंगे, लेकिन कभी इखलाकियात का दामन नहीं छोड़ेंगे। और हमें और ये वाकई तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक स्टैंडर्ड सेट कर लेना चाहिए। हम रोल मॉडल्स होते हैं और लेकिन इमरान खान साहब का यही प्रॉब्लम है, तर्जुमानों को बिठा के गालियां देने की ट्रेनिंग मिलती है और कहा जाता है बस बैश करो, सोशल मीडिया पे जो है वो किसी की माँ बहन ना छोड़ना और वो करो। ये जो सियासत के अंदर देखो, हम मईशत शायद ठीक कर पाए, एक मिनट एक लाइन सिर्फ ऐड कर दूं, हम मईशत शायद ठीक कर पाए, हम पाकिस्तान के मसाइल शायद ठीक कर पाए, लेकिन ये जो बदतमीज फोर्स पीटीआई ने पैदा की है ना, इसको सदियों तक ठीक करने में मैं समझती हूँ कि मैं बहुत टाइम लगेगा। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की आने वाली बरसियां शायद मेरे इस सवाल का जवाब जरूर दें कि ये जो इत्तेहाद है ये सियासी है या वाकई जो मैंने कल मनाजर देखे वो हकीकत है। यासर हमायूं साहब अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है आप बेकरार हैं अज़मा साहिबा को रिस्पॉन्ड करने के लिए, लेकिन पहले मेरा सवाल, क्योंकि आई एम वेरी टाइम बाउंड, बहुत कम वक्त होता है मेरे पास, और मेरा सवाल ये है कि आप लोग मौलाना साहब को सीरियस थ्रेट समझ रहे हैं। मैंने आज भी सुना शेख रशीद साहब बोल रहे थे, इमरान खान साहब भी, मौलाना साहब को आप लोग इतना सीरियस ले रहे हैं, लेकिन असल में जो आसिफ अली जरदारी साहब ने कल मैसेज दिया,
آپ نے یا تو وہ اگنور کر دیا یا مجھے نہیں پتا، کیونکہ یہ وہی آصف علی زرداری صاحب ہے جن کے اوپر آپ لوگ تکیہ کیے بیٹھے ہیں کہ یہ وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں جو آپ کو نواز شریف صاحب اور مولانا سے بیل آؤٹ کرائیں گے. پہلے ہی میرا خیال ہے ایک جنرل جو آپ بات کی اس کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں پالیٹکس جو ہے نا وہ اسپیشلی پنجاب میں، لیکن پورے پالیٹکس ہی دو دھڑوں میں ہوتی ہے. پیپلز پارٹی اپنا بہت بڑا نقصان کر چکی ہے پنجاب میں آلریڈی، جس کا نتیجہ یہ بھگت رہے ہیں. جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تب تو ایک حالات بالکل ایسے ہی ہے کہ مشرف کے خلاف جدوجہد تھی، بی بی نے پرنسپل پہ معاہدہ کیا تھا. لیکن اس کے فوراً بعد یہ ایک بالکل مس آؤٹ کر دیتے ہیں جب بھی یہ گفتگو کرتے ہیں کہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد جب گورنمنٹ آئی اور نون اور پیپلز پارٹی نے مل کے گورنمنٹ کی اور ہم بھی اس میں حصہ تھے، تو انہوں نے کیا سلوک کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ پنجاب میں. اسی سلوک کے نتیجے میں اور اس کے بعد جو باقی یہ باتیں کرتے ہیں کہ اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا، تو بیچ کا ایک پورا چیپٹر مس کر جاتے ہیں. سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات اس کے بعد کی تھی شہباز شریف صاحب نے، اس کے بعد زرداری صاحب نے بہت ساری باتیں کی تھی، وہ بھی ایک چیپٹر تھا. پھر بیک ٹو سکوئر ون، پھر اکٹھے ہو گئے. تو کوئی حرج نہیں ہے، اکٹھے ضرور ہونا چاہیے، لیکن اٹس گڈ فار اس. یہ انہوں نے پنجاب میں اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی رہے گی، پنجاب میں نون رہے گی، تو میرا خیال ہے ان کے لیے بہتر ہے. آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ ہم تو بالکل سیدھی سی بات ہے کہ دوسری سائیڈ پہ کھڑے ہیں. اب ان کو دوسرا دھڑا ہے، ایک طرف یہ ہیں ایک طرف ہم ہیں. اور پالیٹکس ہم اگر ان کے ساتھ کمپرومائز کر نہیں سکتے، ریزن بینگ کہ ہم جو نیریٹو لے کے آئے تھے کہ احتساب جو ہے وہ ہوگا، این آر او نہیں ہوگا، اگر یہ اس سے نکلتے ہیں احتساب سے تو ویل اینڈ گڈ. کیسز ہم نے نہیں بنائے تھے ان پہ. آپ کو یہ ہر پروگرام میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ کیسز جو ہیں یہ نون لیگ نے شروع کیا تھا کام پیپلز پارٹی کو وکٹمائز کرنے کے لیے. کچھ کیسز اصلی تھے، کچھ جعلی تھے. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سیف الرحمان نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو بہت سارے کیس زرداری صاحب پہ جعلی تھے اور کچھ اصلی بھی تھے. جب آپ مکس کر دیتے ہیں صحیح اور غلط تو پھر جو ہے سب کچھ جو ہے وہ آپ کی سارا چیز ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اتنا لمبا لوگ جو ہے نا پالیٹکس کو بڑی اچھی طرح سمجھ گئے ہیں. لوگوں کو شعور آ چکا ہے. پیپل ہیو ڈیسائیڈڈ. جو ان کی سائیڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں نون لیگ کے ساتھ وہ شاید کھڑے ہی رہیں. ان کو اگر سمجھ آنی ہوتی تو ابھی تک آ چکی ہوتی. ٹھیک ہے، تو میں یہ پولیٹیکل بات جو ہے وہ یہ اب جو آپ نے بات کی زرداری صاحب کی تھریٹ کی، اس میں بھی میں تھوڑا عرض کر دوں. زرداری صاحب کے فرق یہ ہے کہ زرداری صاحب بہرحال ایک اپنی محب وطنی ثابت بھی کر چکے ہیں. انہوں نے جب بی بی کی شہادت ہوئی تو ایک بڑا موقع تھا، ملک میں آگ لگی ہوئی تھی، اور انہوں نے ایک ایسی بات کی اور اس کے بعد یہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اور ایک دیکھیں آپ پالیٹکس ہے، آپ نے مخالف، آپ کی کوئی مخالف بھی ہوگا، آپ کسی کے حق میں کریں گے، لیکن سٹیٹ کے خلاف بات کرنا جو ہے سب سے خطرناک ہوتا ہے. نہیں اس میں تو کوئی دیکھیں ایک چیز، وزیر داخلہ کہہ رہے تھے کہ پی ایچ ڈی میری بات آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں نا. آپ ضرور سر، میں آپ کو موقع دوں گی پر مجھے سوال کرنے کا تو رائٹ دیں. پہلی بات کا جواب پہلی کا جواب دے لوں نا، بڑا ضروری ہے. دیکھیں جو فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں اور جو نواز شریف صاحب کر رہے ہیں یہ اینٹی سٹیٹ باتیں ملک کے لیے خطرناک ہیں. ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے ان سے. فضل الرحمان کے ووٹ کتنے ہیں، لیکن اگر وہ مدرسے کے اسٹوڈنٹ لے کے اور چڑھائی کر دے تو یہ ایک ملک کے پورے فیبرک کے لیے نقصان دہ ہے. اور جس ایکسٹریم مائنڈ سیٹ نے بی بی کو شہید کیا یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو فضل الرحمان کے ساتھ ہے اور یہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں زرداری صاحب. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بالکل ان نیچرل قسم کا الائنس ہے. اور اگر ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ عمران خان کے خلاف انہوں نے لڑنا تو یہ اپنا نقصان کر رہی ہے. پیپلز پارٹی ایک انلائٹنڈ پارٹی ہے. آصف علی زرداری صاحب نے آپ نے مس کر دیا. آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو مشرف صاحب کو باہر نکالا. میں یہی انہوں نے پہلے بھی بڑے دعوے کیے تھے، پھر ان کو پہلے کئی دفعہ وہ کوشش کر چکے ہیں، دعوے کرتے ہیں، ریٹریکٹ کرتے ہیں، ایک دفعہ کر کے ملک سے باہر چلے گئے، پھر واپس آ گئے. تو سیانے آدمی ہیں، کر لیں گے وہ کچھ بہتری کریں. چلیے جی، پاکستان پیپلز کا کیا پوچھوں، مبارک ہی دے دیتی ہوں. السلام علیکم، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. یو آر ہیونگ اے ون ون سچویشن آلویز. آپ سینٹ کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر کے، بائی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر کے، آپ جو ہے سینٹ کے انتخابات کے اندر جو ہے حصہ لے کر کے، دھرنا نہ دے کر کے آپ حکومت کے ساتھ ہیں، اور پی ڈی ایم کے جلسوں میں شرکت کر کے آپ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں. تو آپ کے لیے دونوں طرف سے سچویشن ون ون ہے، اور جس طرح کی آپ پالیٹکس کر رہے ہیں میری مبارکباد ایکسپٹ کیجیے. بس میں یہی کہہ رہی ہوں. سب سے پہلے بات تو میں اس کے اوپر یہ کہنا چاہوں گا کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے نا وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہ ایک الیکشنئرنگ الائنس نہیں ہے. پی ڈی ایم جو ہے یہ ایک تحریک ہے. اٹ از ناٹ این الیکشنئرنگ الائنس، یا ایک پارٹی نہیں ہے جس کو آپ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ ایک پارٹی ہے. ہاں مجھے بھی پتہ ہے کہ جب دو اکٹھے ہو جاتے ہیں تو نیچے ووٹر اس کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، لیکن ہم وہ سیکریفائز کر رہے ہیں. اگر ہم وہ سیکریفائز کر رہے ہیں، آئی ایم شیور کہ نون لیگ بھی کر رہی ہوگی، آئی ایم شیور کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی بھی کر رہی ہوگی. ہم کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں کو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ
छोटा सैक्रिफाइस इसलिए कर रहे हैं अपने लिए, अपना जाती सैक्रिफाइस इसलिए कर रहे हैं। मूसा गिलानी जरूर अपना सैक्रिफाइस अपनी सीट पर, उसकी सीट पे फर्क पड़ रहा होगा जब वो नून लीग के पैनल पे खड़ा होगा या वो मौलाना के पैनल पे खड़ा होगा, पर हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज राजा साहब यहाँ पर अपने इलाके से आते हैं, इनको पता है नहीं आप इमरान खान को गिराने के काबिल नहीं हैं। इमरान खान को गिराने के काबिल तो आपको ये साल चढ़ रहा है वो पता लग जाएगा, हम वहीं पर हैं। ये बातें तो आपको हमारे से ज्यादा, हमने हुकूमतें भी गिराई हुई हैं, हमने डिक्टेटर्स को भी गिराया हुआ है, और यही बात जरदारी साहब ने की है। हमने तो मुशर्रफ की वर्दी उतरवा दी, मुशर्रफ को हटा दिया, उसके खिलाफ मुआवजा कर लिया। तो ये इमरान खान कहाँ की चीज है? आपने कब बदलवाई है? पीपल्स पार्टी, मुशर्रफ को किसने निकाला था? किसने निकाला? आप बताएं, मुशर्रफ ने जब इस्तीफा दिया था तो कैसे दिया था? कैसे दिया था बताइए ना। आपने क्या कोई तहरीक चलाई थी? मैं यही तो पूछ रही हूं। हम तहरीक के बगैर अगर गिरा दें तो वोंट इट सेव द हैसल। लेकिन बात यह है कि चेयरमैन साहब ने क्लियरली बोल दिया है कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, और इस्तीफे की जो बात है, इस्तीफे जो है वो हमारी चेयरमैन के पास हमारी पार्टी वालों ने भी दे दिए। ठीक है, चेयरमैन साहब ने बोला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीसी की मीटिंग में इस्लामाबाद चलना है, और को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब ये बोल रहे हैं कि हमें तरीका बदलना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वो एनआरओ जो हम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं ना, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस होता है, जिसको अगर आप उर्दू में समझे तो मुफाहमत होती है। अब पता नहीं इसको क्यों इतना बुरा समझा जाता है और इतना घिसा पिटा ये नाम हो गया है। खैर एनीवेज, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। विल बी बैक। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी ऑनरेबल मूसा गिलानी साहब, वेरी ऑनरेबल राजा यासिर हमायूं साहब, वेरी ऑनरेबल अज़मा बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद है। डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज जो कि पिछले डिस्कशन में रहेगी, बिकॉज आज राजा यासिर हमायूं साहब भी बड़े एग्रेसिव मोड में आए, विच इज ओके, ठीक है। ग्राउंड रियलिटी राज साहब मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, आप एक मेयरशिप का इलेक्शन नहीं जीत सके। यू नो इट हैपेंड इन इस्लामाबाद, और जो मेयर हैं वो कौन सिलेक्ट हुआ है? डू यू नो दैट? इट इज फ्रॉम अज़मास पार्टी। आपने जनरल इलेक्शन छोड़े, सेनेट के इलेक्शन छोड़े, आप बाकी इंतखाबात कैसे जीतेंगे? दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। ये एक टेस्ट केस था नहीं, एक आप किसी एक हल्के का टेस्ट केस नहीं होता। अभी जीबी में भी इलेक्शन हुए हैं, तो फिर वो जब जीबी में हम जीते हैं तो आप कहेंगे ये गवर्नमेंट ने जितवा दिए हैं, एक हार गए हैं तो बिल्कुल ठीक हुए हैं। तो देखें, ये आपका पूरा मुल्क है, कंस्टिट्यूएंसी, वहां पर तो सर हमने कहा ना कि हुकूमत जीतती है, लेकिन इस्लामाबाद में भी हुकूमत जीतनी चाहिए थी सर। मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं बल्कि कह रही हूँ, ये पूछ रही हूँ आपसे। अभी जो दरमियान में कोई लिटमस टेस्ट होती है, 6 महीने पहले लोग डिसाइड करते हैं कि उन्होंने वोट किसको देने हैं, तो वी आर सेटिस्फाइड, हम कर लेंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, अज़मा बुखारी साहिबा, पिछली कॉन्वर्सेशन से मैं इस चीज को कैरी करूंगी। आसिफ अली जरदारी साहब ये क्रेडिट ले रहे हैं कि मुशर्रफ साहब को आसिफ अली जरदारी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने निकाला। आसिफ अली जरदारी साहब एक दफा प्रेसिडेंट बने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने हैं। लेकिन फिर भी ये तासुर है, एंड प्लीज अलाउ मी टू आस्क दिस, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप मुझे इसका जवाब देंगे और आप देना भी चाहेंगी, कि 3 दफा का जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी सियासत भी आज जो एक दफा प्रेसिडेंट बना उसके गिर्द घूम रही है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि पूरी सियासत आज भी आसिफ अली जरदारी के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। फैसला वो होगा जो आसिफ अली जरदारी करेगा। कैसा महसूस होता है आपको इस सिचुएशन में? देखिए विनेश, पहले तो मैं छोटी सी बात सिर्फ इसी सवाल पे आपके करूं, ये ना हो कि अनअटेंडेड चला जाए। देखिए, आसिफ जरदारी साहब का एक अपना मुकाम है सियासत के अंदर, और वो तोड़ जोड़ के और वो बादशाह कहलाए जाते हैं। उनकी एक अपनी है, एक जो उनका प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब की एक अपनी रियलिटीज हैं, और वो ये है कि 3 दफा का जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उसको किस किस तरह कैसे किस किस के हाथ लगे हुए हैं, और पाकिस्तान की तारीख के कितने कितने बड़े राज उनके पास मौजूद है। इस वक्त नवाज शरीफ साहब के एक्सपीरियंस और उस लेवल का पाए का लीडर पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन हम पीडीएम के अंदर हम एक वन साइडेड पार्टी नहीं चला रहे, हम मुत्तफिका फैसले करते हैं, बैठकर बात करते हैं, हर एक की राय सुनी जाती है और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए आसिफ जरदारी साहब की जो प्लस पॉइंट्स होंगे उनको इस्तेमाल किया जाएगा, और जो नवाज शरीफ साहब की एक स्टेटसमैनशिप है और जो उनकी पाकिस्तान के ऊपर एक सियासत पे ग्रिप है, यकीनन वो एक एसेट है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत जो है उस पर हम सब ये काम कर रहे हैं। अब मुझे 1-2 बातें जो है राजा साहब की जरूर रिस्पॉन्ड करनी। पहले तो बात यह है कि राजा साहब को अपोजिशन में हमारे बैठने पे एतराज है, लेकिन जिसको सबसे बड़ा डाकू कहा वही आपका स्पीकर है आज।
जो सबसे ज्यादा कातिल थे ना, जिनके ऊपर आपने लंदन में भी जाके केस किए और यहाँ पर भी केसेस थे, वो आज आपकी इत्तेहादी हैं। बाय द वे आपकी इत्तेहादी जो भाग भूग रहे हैं, जरा उन पर नजर रखें, वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। और ये जो भी आपने इस्लामाबाद की बात की, ये इनको मेरा ख्याल है राजा साहब को पता नहीं है। राजा साहब हमारे जो मेयर थे ना पहले, शेख अंसर साहब, उनको ब्लैकमेल करके, उनको थ्रेट करके मजबूर किया गया कि वो इस्तीफा दे। लेकिन आपको ये बता दूं कि आप हमारे जो है ना चेयरमैन, आप उनको, वो वर्कर लेवल चेयरमैन जो है ना, वो आपकी धांसे में नहीं आए और वो नवाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद है। तो अब आप सोच लें कि आपका क्या होगा। एमपीएज एमएनए में अपने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने थे और पता नहीं इतने लोग हमारे से चले गए और फलाने हो गए, सबके रेजिग्नेशन के हमारे पास मौजूद है। रेजिग्नेशन आ नहीं रहे, रेजिग्नेशन आ गए हैं। पहली तो ये बात। दूसरी बात ये है कि आप कह रहे थे कि एक तरफ जो है ये लोग हैं, एक तरफ आप हैं। तो मेरे प्यारे भाई, आप कहीं नहीं हैं। ये मतलब अपना रिकॉर्ड दुरुस्त फरमा लें, आप कहीं नहीं हैं। पीडीएम के अगर वोट गिनने का आपको बड़ा शौक है ना, अपने वोट गिन लें और पीडीएम को जो वोट मिले हैं जरा उसको देख लें, तो आप उसके 40% जो है वो बनते हैं। हम 60% से ज्यादा हैं पीडीएम ने जितने वोट लिए थे, अगर वोटों की गिनती करनी है। और दूसरा ये भी हम बिल्कुल वोट चोरी, माफियाज की स्टेट, करप्शन की स्टेट, एटीएम्स की स्टेट और सियासी मुदाखलत की आपकी स्टेट है, बिल्कुल उसके खिलाफ एंटी स्टेट नैरेटिव लेके चल रहे हैं। और उसके ऊपर फख्र है कि ये तमाम जो आपके ये जो आपके तरीकाकार हैं और जो आपकी सियासत का तरीकाकार है, इसके खिलाफ हमारा स्टेट है, हम एंटी स्टेट इसके जा रहे हैं। और वो जो इस्तीफों वाली बात है ना, वो जो इस्तीफे आ चुके हैं ना, वो असल में आ नहीं चुके हैं। वो मरियम बीबी हमें खुद कह रही थी कि भाई वो मुर्तजा जावेद अब्बासी एनिक सेक्टर, वो जो 2 इस्तीफे उनके खुद तस्दीक करें, तो वो आ नहीं चुके अभी। मैं यही तो कह रही हूँ कि वो आ चुके हैं। और मजे की बात है कि इतने डेस्परेट हैं बेचारे कि पहले कह रहे थे लोग इस्तीफे नहीं देंगे, फिर इस्तीफे आ गए तो अब एक नया काम शुरू किया। वो हमेशा की 2 नंबरी की जो सियासत है ना तहरीक इंसाफ की, वो कहता है चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। इनका वो हाल है कि वो सोशल मीडिया से उठा के पोस्ट करा के स्पीकर को भेज दिए और अब कह रहे हैं मेरे प्यारे भाई अभी इस्तीफे नहीं आए ना। आप कह रही है ना इस्तीफे आ चुके हैं, तो नहीं है। जब मरियम बीबी कह रही है कि जाके तस्दीक करें, मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब कह रहे हैं कि भाई मैंने नहीं किए, पता नहीं किसने भेज दिए, तो फिर वो इस्तीफे नहीं आए ना। नहीं, मेरी बात सुन लो। ये देखिए ना, हमारे इस्तीफे हैं, कोई इमरान खान के घर का बिल तो नहीं है ना कि कोई और दे देगा, या इमरान खान के घर का किचन तो नहीं है ना कि कोई और फैसला करेगा। ये हमारे इस्तीफे हैं, हमें देने हैं, किस वक्त देने हैं इसका फैसला नहीं। तो फिर मरियम नवाज साहिबा ने जलसे में खड़े होकर ऑर्डर क्यों दिया कि जाके तस्दीक करें? उनका बस चले ना, उनका बस चले तो वो सुबह ही हमारे इस्तीफे दिला दे। और लेकिन यह है कि वो खुद फैसला नहीं कर सकती, इसका फैसला पीडीएम ने करना है। और इसीलिए हम इंतजार कर रहे हैं। हमारी स्पिरिट वैसे यही है कि इस गिरती हुई दीवार को एक धक्का अगर हमारे इस्तीफों से, और मैं देखूंगी जब 400 इलेक्शन होंगे ना, 400 इलेक्शन होंगे ना राजा साहब, तुसी भी थे तो मैं भी थे, देखा कि 400 इलेक्शन होंगे कि मैं। जी आपने सुन लिया है, मरियम बीबी कितनी बेसब्री है। उनका तो बस चले कि वो कल ही जाके इस्तीफे दे दें। कुछ आप कर लें, अपनी पॉलिसी को रिविजिट रिवाइज करें। क्या करना है आपने सर? कैसे लड़ना है इन सारों से? 10 पार्टियां हम तो इंतजार कर रहे हैं, इस्तीफे दें जरूर, लेकिन मोस्ट वेलकम। हमने तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम तो इंतजार खत्म नहीं हो रहा, इंतजार की घड़ियां नहीं खत्म हो रही कि कब ये देती। दूसरा ये कि ये फजूल बहस मैं बिल्कुल नहीं करता, लॉजिकल बात कोई है तो कर लेते हैं। मेरी बड़ी मोहतरम है, इनकी पूरा खानदान मेरे लिए मोहतरम है, लेकिन ये जो पॉइंट्स ये देती है ना, इससे इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है। जब फजूल बहस बंदा करता है तो जो आपका सुनने वाला सीरियसली लेना छोड़ देता है आपको। तो मैं समझता हूँ कि वो जो पॉइंट है ना जी, मुझे कोई फिक्र नहीं है आपकी, मुझे हमदर्दी की जरूरत है। मेरी यार सुन ले, मैं इनकी आपकी मुकम्मल गुफ्तगू मैंने सुनी, सीरियस लेती है, मैं जानती हूँ। नून लीग का वोटर जरूर लेता होगा। देखिए एक होता है नून लीग का वोटर, टिपिकल वोटर, ठीक है, उसने तो इनको सीरियसली लेना है, पसंद भी करना है। इस तरह कुछ पीटीआई में भी मेरे दोस्त हैं, उनको भी सिर्फ खास लोग ही सुनते हैं। लेकिन अगर आपने एक न्यूट्रल ऑडियंस को इंप्रेस करना हो ना, तो यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल टू द पॉइंट। और ये तो मेरी अब प्लीज काइंडली मेरी जरा गुफ्तगू आगे सुन ले सर। जिनको खास लोग सुनते हैं ना, वो फेवरेट होते हैं आपके वजीर आजम इमरान खान साहब के। तो अगर आप तारीफ करना चाहते हैं, आप खुल के करें। ये भी ब्लू आइड है मरियम बीबी की। ये खान साहब की है ब्लू आइड, ये तो बता दे। खान साहब की है, खान साहब की नहीं, मरियम बीबी की है ब्लू। अच्छा नहीं, वो तो हमें भी पता है, वो तो पार्टी को भी पता है कि मरियम बीबी। अच्छा मुकम्मल कर ले, मुझे इनसे जल्दी से क्विक ब्रेक लेना है। जी मूसा साहब।
रेजिग्नेशन के ऊपर आप लोग का क्या टेक है? आज तो मतलब कल इनफैक्ट आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो तो कह रहे थे हमें तरीका बदलना पड़ेगा, समवेयर समहाउ ही इज नॉट दैट कीन ऑफ द रेजिग्नेशन। देखिए आसिफ जरदारी साहब ने जो बात की है वो उनका एक अपना तजर्बे के हिसाब से उन्होंने तरीकाकार, इस्तीफों पर उन्होंने बात बिल्कुल नहीं की है। इस्तीफों का मुद्दा कल चेयरमैन साहब अपनी सीसी के अंदर लेकर जा रहे हैं और तो डिसाइडेड नहीं है ना। नहीं देखिए, हम मौलाना साहब और मुस्लिम लीग नून और जितनी भी पार्टीज हैं पीडीएम के अंदर एक हम कल के जलसे के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जितने ये खदशात थे और लोग जो एक बातें फैलाना चाह रहे थे कि पीडीएम के अंदर दरारें हैं या कुछ है, कल के जलसे के ऊपर ये तासुर खत्म हो गया। और पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चेयरमैन बिलावल के इनिशिएटिव के ऊपर ये पीडीएम फॉर्म हुई थी सबसे पहले जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी। सही है। अगर हम हिस्ट्री में चले जाएं तो हम उसको इंटैक्ट रखेंगे और उसके जितने भी नुकात पर हमने साइन किए हुए हैं। बहुत पुरानी बात हो गई ना। आप नई बात है। पिछले हफ्ते बुक को मैं शो कर रही थी कि राब्ता होता है बैकडोर आसिफ अली जरदारी का, नवाज शरीफ साहब का। आसिफ अली जरदारी सब सजेशन देते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, कुछ भी कह ले वो कहते हैं हमें सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेना है। अब आगे बात बढ़ गई है, कल तो उन्होंने कुछ और बात कह दी। लेकिन सेनेट आपको ये बात जब तक कि हम इस्तीफे नहीं दे रहे, इसका मतलब ये है कि कल इलेक्शन हो जाए तो अभी तो हमने इस्तीफे नहीं दिए तो मैं इलेक्शन ना लड़ूं। हम क्यों नहीं लड़ेंगे इलेक्शन? इलेक्शन लड़ना तो इस राजीव साहब की बात में कर लूं कि ये ब्लू लिटमस टेस्ट है कि अवाम जो है गवर्नमेंट के अंदर इलेक्शन लड़ने के बाद इस्तीफे देंगे। इस्तीफे आगे देखिए हम इस्तीफे देंगे तो जो अगर जीत जाएंगे तो उसका भी इस्तीफा दे देंगे, जीतेंगे और फिर उनके भी इस्तीफे आप इकट्ठे तो क्या नहीं, ये नहीं कह रहा इस्तीफे। अगर इस्तीफा हमने महीने बाद देना उससे पहले इलेक्शन हो गया तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। ओके, इस्तीफों की तादाद बढ़ाना अगर ये देखें ब्रेक लेनी है। आई हैव टू टेक अ ब्रेक, लेट्स कंप्लीट इट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एक वक्फे के बाद वापस आएंगे, तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद रहेंगे। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है विद वेरी डायनामिक अज़मा बुखारी, राजा यासर हमायूं साहब एंड मूसा गिलानी साहब। अज़मा बुखारी साहिबा, आसिफ अली जरदारी साहब कल फरमा रहे थे कि कुछ हमसे सीख लो, कुछ हमसे समझ लो, ये काम पहले भी कर चुका हूं, हमें ना बताओ कि क्या करना है। कौन उनको कह रहा है, कौन उनको डिक्टेट कर रहा है? आप उनको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं? देखो हम जो भी कहना चाह रहे हैं, जो भी समझाना चाह रहे हैं वो हम पीडीएम में समझा लेंगे। नहीं उन्होंने पब्लिकली बात की आसिफ अली जरदारी से। मैं आपसे कभी ना पूछती अज़मा, आपको भी मेरे मॉरल्स का पता है, मैं कभी ना पूछती। उन्होंने पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे बात की, पब्लिकली बात की, इसलिए आई एम बाउंड टू आस्क यू। वो बड़े हैं, वो कह सकते हैं, लेकिन हमने जो बात करनी होगी हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे करेंगे। और यकम को मीटिंग आ रही है, 3 दिन दूर है, कुछ ज्यादा तो टाइम रह नहीं गया, तो वहां बैठकर बात होगी। और जाहिर है जब उसके बाद फैसला होता है तो उसमें तमाम लीडर जो है मिलकर फैसला अनाउंस करते हैं। अब 1-2 बातें मुझे अपने प्यारे जो है वो राजा साहब के साथ जरूर करनी है। प्यारे भाई, आप मेरी ना उसमें ना घुले, मेरे गम में आप मुझे इलॉजिकल रहने दें। सिर्फ मुझे अपना चीनी चोरी की लॉजिक बता दें, अपने आटे चोरी की लॉजिक बता दें, अपने ये जो आज हमने आपने गलत फैसले करके पाकिस्तान को जहां पहुंचा दिया, आज हमारे घरों में गैस नहीं है, हमें ये बता दें कि हम अब उसकी लॉजिक क्या थी कि आपने वक्त में फैसला क्यों नहीं किया, मुझे ये बता दीजिए। इसकी लॉजिक बता दें कि आज पूरा लाहौर जो है वो कूड़ादान बना हुआ है, इसकी लॉजिक बता दें। प्यारे भाई, जब दलाइल नहीं होते, जब आपके पास जो है वो जवाब नहीं होता, बातें इलॉजिकल लगती हैं। और मेरी बातें आपको इलॉजिकल लगे, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मेरिट है। ठीक है जी, वो तो खुश हो रही हैं, कह रही मेरिट है, लेकिन वैसे बातें तो सही की हैं सर। आपको वोट मिलने हैं जब भी आप इलेक्शन में जाते हैं। आई ऑल्सो फील के इमरान खान इज हियर टू स्टे, लेकिन जब भी आप इलेक्शन में जाएंगे आपको आपकी परफॉर्मेंस पे वोट मिलने। परफॉर्मेंस क्या है सर? आप तो पूरा करकट नहीं उठा पा रहे। ऐसे नहीं है, ये बड़े छोटे से इश्यूज हैं। एक्चुअली हमने इकोनॉमी देखे, दुनिया की इकोनॉमी देखे। आप बात सुन ले ना, मैं आपको अर्ज करता हूँ ना, ये चीजें जो इंस्टीट्यूशंस ने करनी होती है। इकोनॉमिक रिवाइवल जो है, जो आपकी 20 साल से पॉलिसीज गलत चल रही होने तो आपने नोज डाउन तब किया, नोज ड्राइव आपने तब किया। हम जो पॉलिसीज लेके आ रहे हैं उसकी वजह से आपका रिवाइवल भी हो रहा है। और जो कोविड के बावजूद पाकिस्तान की इकोनॉमी की परफॉर्मेंस देखे अपने इर्द गिर्द के ममालिक से, कल अमेरिका में लोगों ने दावा बोल दिया फूड स्टैम्प्स की, उस पर इतने बुरे हालात फर्स्ट वर्ल्ड के मुल्कों में, यूरोप में देखें। और पाकिस्तान में ठीक है हालात खराब हैं, लेकिन इतने खराब नहीं है जितना रोना ये रो रही है। ठीक है, अगर खराब नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाउस उस जगह पे जहां पे शायद कोई यूनिवर्सिटी वगैरह बनानी थी, देखिए ये बातों से हालात तो बिल्कुल खराब नहीं है। मैं तो सर आम आवाम की बात कर रही हूं। ये नहीं हो सकती। आपने बात ये है कि अगर हम गलत कर रहे हैं, पॉलिसीज ठीक नहीं, तो इनके तो हक में है। ये टीवी पे तो साबित नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ेंगे, इनको भी पता चल जाएगा किसने अच्छा काम किया, किसने नहीं किया। दूध का दूध, पानी का पानी। वो तो हम बात जो है वो बेसिकली देखें,
जो इलेक्शन आएगा ना अगला, इनको तो खुश होना चाहिए ना, हम परफॉर्म नहीं कर रहे, वेरी गुड फॉर देम, ठीक है, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या है? अब टीवी पे मैंने कैसे परफॉर्म, सर क्या आप खुश हैं, क्या परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्या आप खुश हैं? यहाँ पर हम नहीं कर पा रहे, तो कर रहे हैं, हमारा ख्याल है कि हमने हमने इंडस्ट्री का रिवाइवल होना शुरू हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया, आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हैं, हमारा ख्याल है कि अगले इलेक्शन से पहले लोगों को हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे इकोनॉमिक प्रोग्रेस। जी सर, यहाँ पर ये जो हमें कह रहे हैं ना, इन्होंने ये कह रहे हैं ना कि इट्स गुड फॉर अस। देखें, यही तो हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये बर्बाद कर दे। क्या हमने इसलिए अवाम के नुमाइंदे हम इसलिए हैं कि हम कहें नहीं तुम बर्बाद हो जाओ, तुम रज लो और फिर हम आएंगे तुम्हारे साथ हमदर्दी मरहम लगाने के लिए? नहीं, हम उनको मरने से अभी बचाना चाह रहे हैं, इसीलिए तो हम निकल रहे हैं। ये हमें जो मैंडेट दिया हुआ है अवाम ने, वो हमें हमें कह रही है ना, ये बात आप शो नहीं कर रहे हैं। जो जलसे हो रहे हैं एनआरओ, राय साहब, ये एनआरओ वाली बात जो है ना, ये प्लीज ना किया करें, क्योंकि एनआरओ लेके तो इमरान साहब खुद आए हुए हैं और अब वो एनआरओ नहीं दे सकते, उनके बस में नहीं है एनआरओ देना। एनआरओ वो चीनी वालों को दे चुके हैं, उन्होंने सिर्फ अब इस्तीफा, उन्होंने कहां केस चल रहा है, कितने बंदे अंदर हुए, बात मुकम्मल कर लें। राजा साहब थोड़ा सा टीवी पे वाकई बैठ के लॉजिकल बातें करनी चाहिए। जरा अपनी वजारत खजाना की रिपोर्ट पढ़ ले, प्लस स्टेट बैंक की रिपोर्ट पढ़ ले, जिसके मुताबिक आपका तजारती खसारा भी बढ़ गया है, आपकी बरामदानी भी कमी हुई है। To be continued. I'll see you all tomorrow. सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से मैं कल मुलाकात करूंगी, सेम टाइम सेम चैनल। लुक आफ्टर योरसेल्फ।